So we'll continue. We have done socio-economic aspect, and now we are starting with demographic factor. See, in demographic factor, we'll just write one line. Uska reason hai fertility, mortality, migration is a separate topic in the syllabus, and most probably fertility I'll start today, and mortality and migration I'll be doing in next lecture. Okay? So give the heading demographic factors. Demographic factors. अच्छा, इसमें सेपरेट हेडिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ पॉइंटर्स लिखेंगे. मतलब डेमोग्राफिक फैक्टर में माइग्रेशन वगैरह सेपरेट हेडिंग नहीं डालेंगे. वील जस्ट राइट 2 पॉइंट्स. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट, रीजन्स विथ हाई फर्टिलिटी, रीजन्स विथ हाई फर्टिलिटी and low mortality experience population concentration. High fertility and low mortality experience population concentration. For example, according to NFHS 5, TFR is below replacement level. TFR is below replacement level. However, there exists regional variation. For example, UP, Bihar, Jharkhand, where TFR is above the national average. Where TFR is above the national average. Clear hai? Next point. Migration is the most direct determinant of population distribution. Direct determinant of population distribution. For example, in context of India, 450 million internal migrants. 450 million internal migrants, comma, most seasonal migrants from UP and Bihar. Most seasonal migrants from UP and Bihar. Full stop. Now, migration is a detailed topic. We'll discuss in the next class in detail. तो अभी हम इतना ही लिखकर छोड़ेंगे that whenever the question comes, you should have an idea. Demographic factor means natural increase, that is fertility and mortality, and third is migration. फिर लिखेंगे political factors. Political factors. इसमें अलग-अलग लिख सकते हैं. Political factors. War and conflict. Political factors, war and conflict.
conflict displace population. Conflict displace population. For example, partition of India resulted in massive demographic redistribution. Massive demographic redistribution. Similarly, recent inflow of Rohingyas to South Asian countries exemplify how conflict reshapes demography. Exemplify how conflict reshapes demography. Next, political unrest and discrimination. Political unrest and discrimination. Ethnic and religious discrimination, discourages settlement. Ethnic and religious discrimination discourages settlement. Just hold. For example, जो अभी the racial discrimination हुआ, let us say northeastern students के against in Delhi. So now this will discourage other students from settling in that place. So any kind of ethnic or religious discrimination impacts the settlement of the population, and in turn it will affect how population is concentrated or dispersed in different geographical area. ऐसे में हो सकता है ना, they would prefer to settle in their own region rather to migrate for better opportunity because they believe they might be the victim of racial discrimination. Is that clear? Next लिखो, या इसी का एग्जाम्पल दे दो, आपको याद नहीं रहेगा. For example, migration patterns of northeast people, are influenced by ethnic and racial tensions. क्या हम ये कह सकते हैं discrimination against migrant workers during COVID has also resulted in reverse migration? Or the challenges faced by, हमें तीसरा point है ना policies, तो challenges faced by the informal sector workers during demonetization has also resulted into reverse migration. Did you get the point? ठीक है, अभी भी हो सकता है because of this LPG crisis many people are going back to their homes. Did you get the point? क्योंकि हो सकता है ना, there are other alternative means to cook the food. अब गांव वगैरह चले जाएंगे तो चूल्हे पे खाना बन जाएगा, यहाँ पे तो LPG अवेलेबल नहीं है. तो the point लिखो, इसी में दूसरा एग्जाम्पल लिखो. Discrimination against migrant workers in cities can also shape reverse migration, as seen
during COVID-19 lockdown, as seen during COVID-19 lockdown. Next. Policies of government. उसी में लिखेंगे India's family planning program, comma, sterilization policy, although this was discredited, but sterilization policy has reduced fertility trends, full stop. Next लिखो. Development-led displacement policy has resulted into displacement of tribals. किसका perspective डालें? Has resulted into displacement of tribals. कई बार बोला है मैंने, रिकॉल करो, आएगा तो बस Walter Fernandez, 40% of the displaced population are tribals. तो ब्रैकेट में लिख दो Walter Fernandez. अब क्योंकि इंडियन स्पेसिफिक लिख रहे हैं, नहीं तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी भी लिख सकते थे. भाई इंपैक्ट तो हुआ ही है ना. अब क्योंकि इंडियन स्पेसिफिक है तो नहीं लिख रहे, बट अदरवाइज ओवरऑल अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछते व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप चाइना वगैरह का भी एग्जांपल दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, लास्ट वाला है ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इसमें भी सिर्फ एक एक पॉइंट डालते जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर, कॉमा डिजीज पैटर्न and habitability. एक बात ऐसी पढ़ाते पढ़ाते याद आ गई. कल एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो उसने इंटरव्यू दिया है इस बार, तो किसी कारणवश बाकी सब में नंबर ठीक है, 2 में ही कम है, एक ऑप्शनल में और दूसरा इंटरव्यू में. तो मैंने पूछा इतने कम नंबर क्यों है, तो 10-15 मिनट का कुल में इंटरव्यू था एंड उसमें उससे सवाल पूछा गया. पहले ये पूछा ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी पे ही पूछते रहे, फिर उससे बीच में पूछा व्हाट इज सोशल पोलाइटनेस. अब उसने कहा सॉरी सर नहीं पता. तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट पोलाइटनेस ओनली इन द सोशल इंटरैक्शन इज सोशल पोलाइटनेस. फिर 2-5 मिनट बाद फिर उससे इधर उधर के सवाल पूछे, फिर पूछा अच्छा व्हाट इज सोशल शाइनेस. उसने कहा सॉरी सर मतलब क्या ही है, तो शाइनेस while interacting with others in society. तो आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका आंसर सोशियोलॉजिकल न लग रहा हो, या तो जेशन लगा दो उसके आगे, वेस्टर्नाइजेशन, सोशलाइजेशन, पोलिटिसाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, एक तो ये तरीका है. दूसरा नहीं तो हर जगह आगे सॉलिडारिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कैपिटल. आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, जहां जहां सोशल लग रहा है, सोशल कॉन्शियसनेस या फिर सोशल मतलब क्लासेस, तो जो भी है सोशल इनइक्वालिटी, जहां जहां सोशल डालते जाओगे वो सोशियोलॉजिकल होता जाएगा. तो मतलब कहने का है कि एक डेलिब्रेट एफर्ट मार देना, अगर थिंकर नहीं याद आ रहे हो तो थोड़ा क्रिएट करना कि वो सोशियोलॉजिकल आंसर लगे.
तो ये ऑन द स्पॉट किया जा सकता है, लेकिन हर में तफरी नहीं काटना। मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन में ये कर सकते हैं। अगर आपको हर में करना पड़ रहा है, इसका मतलब है ऑप्शनल तैयार नहीं है, ठीक है। सो जनरली सेइंग, लिखा पहला पॉइंट, हैबिटेबिलिटी फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, fertile temperate climate supports dense population. Fertile temperate climate supports dense population. Full stop. Next point डालो. However, World Bank has estimated that climate change will lead to displacement of over 200 million people globally. 200 million people globally by 2050. 200 million people globally by 2050. Clear है? Next. Topography also influences distribution. For example, Himalayan region is sparsely populated. Himalayan region is sparsely populated due to limited land and infrastructural constraint. Limited land and infrastructural constraint. However, according to Manuel Cassel, impact of topography reduces with technological advancement. Impact of topography reduces with technological advancement. जैसे कहीं पे पानी की कमी है, बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है, तो हम माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी भी यूज करके काम चला सकते हैं, सो दैट वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर. सो विथ टेक्नोलॉजी ये जो टोपोग्राफी और टेरेन के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे कैन बी काउंटर्ड. हु सेड दैट? मैनुअल कैसल. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो. सिमिलरली वाटर अवेलेबिलिटी is a major redistributive factor. Water availability is a major redistributive factor. जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन, कि कहा जाता है कि हिस्टोरिकली स्टेट्स वहां इमर्ज करे थे जहां पे रिवर सिस्टम था, so that agriculture can be easily carried out. ठीक है ना? तो थिंकर लिखने की बजाय हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन टर्म यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन थीसिस which states that settlement had emerged around river systems. Settlement had emerged around
river systems so that agriculture can be sustained. So that agriculture can be sustained. Next point. अब सॉइल और मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, उसमें लिखो availability of mineral resources, availability of mineral resources have attracted industrial settlements, have attracted industrial settlements, but also promote unequal development, but also promote unequal development. क्योंकि अगर कोई भी रीजन रिसोर्स रिच होता है तो फिर उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता है, तो लेबर वहां काम करने जरूर आती है बट उसको फिर बहुत लो वेजेस दिए जाते हैं, ज्यादा काम, इनफॉर्मल सेक्टर. सो इन दैट केस अनइक्वल डेवलपमेंट इज वेरी हाई. इसमें क्या लगा सकते हैं? डिपेंडेंसी थ्योरी. अब चाहे आप इमैनुअल वॉलरस्टीन की लगाओ या एंड्रे गुंद्रे फ्रैंक की लगाओ, वो आपकी चॉइस है, बट डिपेंडेंसी थ्योरी लगती है यहां पर. कि आप अगर देखो झारखंड वगैरह को, कितना रिसोर्स रिच एरिया है, बट ओनली द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हैड profited, the labor class had been exploited. So this is nothing but capitalism, inherent contradiction, bourgeoisie versus proletariats. Clear है? ठीक, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो डिपेंडेंसी थ्योरीज एप्लीकेशन. ठीक, और लास्ट नेचुरल डिजास्टर का एक पॉइंट लिखो. frequent floods, comma, cyclones, frequent floods, comma, cyclones, earthquake, etc. discourages settlement. Discourages settlement. Discourages settlement. Full stop. अभी टॉपिक पूरा नहीं करा है लेकिन एक क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही मन कर रहा है देने का. What is reverse migration? What is reverse migration? Question mark. Discuss its causes and consequences. Discuss its causes and consequences. Generally saying, इसके सोशो इकोनॉमिक कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. कोशिश करना. और कॉन्सिक्वेंसेस में तो डेमोग्राफिक भी आता है, कॉज में नहीं आता लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस में आता है. ठीक है ना. सो ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन वेन एवर यू गेट टाइम. बाकी माइग्रेशन तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ही, सो वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. हाउ सेम सेक्स मैरिज are responsible for population dynamics in India. Population dynamics in India. Discuss. पॉपुलेशन डायनेमिक्स को अंडरलाइन करो. पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन का साइज, उसका ग्रोथ, लिख लो, साइज, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. साइज, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसको सोचना, डिस्कस करेंगे लेकिन इसको सोचना. हम देखना चाहते हैं अगर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आता है, सो आर यू एबल टू एस्टैब्लिश एनी लिंक और
not. But this is only possible when you revise whatever we have done. So go back home, you revise this and then try to attempt this question and see are you able to write something or not. अगर same sex marriage है तो do you realize कि impact क्या होगा population growth पे? क्या impact होगा? Birth rate decline करेगा, ठीक है ना, दैट कुड बी वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है. दूसरी बात, पॉपुलेशन का साइज स्टेबलाइज होने लग जाएगा एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. हाउ इट विल इंपैक्ट द कॉम्पोजिशन? whatever is being continuing. And what will be the impact on distribution? Distribution. रूरल एरिया में सेम सेक्स मैरिज मानेगा कौन? So they will have to migrate to those areas where urbanism is being practiced, anonymity, heterogeneity and individualism, where way of life, even in urban area also, you can't live in tier 2, tier 3 city. It has to be metro cities where people are not concerned about what is happening in the neighborhood. In that situation, it is easy to settle. Did you get the point? ऐसे बनाना है आंसर, 10 नंबर का क्वेश्चन है. तो ये पता होना चाहिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है. कहां से पता चलेगा? सिलेबस से. पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब ही होता है साइज, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन. सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी एड्रेस्ड. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, चलो वील डिस्कस दैट इन डिटेल, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक ओवर इट व्हेन यू गो बैक होम सो दैट वी कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक. फैक्टर्स इंपैक्टिंग, अपना फ्लो चार्ट देखो. फैक्टर्स इंपैक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी हमने करा है ना. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन. वील स्टार्ट विथ फर्टिलिटी. थर्ड हेडिंग देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, fertility, mortality and migration. We are starting with fertility. Crude birth rate, first thing. Crude birth rate, it is defined as number of live births per 1,000 population. Currently, it stands at 17.1. जो लास्ट डेटा हमारे पास था, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज 17.1. सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1,000 पॉपुलेशन इज क्रूड बर्थ रेट. सिमिलरली, टोटल फर्टिलिटी रेट is defined as average number of children women would have in her reproductive years. Usually it is considered to be this. Currently it is 2 according to NFHS 5.
Next, give the heading. Factors affecting fertility rate. Factors affecting fertility rate. Factors affecting fertility rate. I'm giving you 2 minutes. थोड़ा सोच के बताओ. Fertility rate is number of births which is happening. So what are the factors which affects birth rate and fertility in our society or in any society for that matter? Education. One of the aspect could be अभी लिखना नहीं. और अरे अरे एक एक करके ऐसे हाथ उठाते हैं. हाँ बोलो. Dietary habits, health profile, और economic conditions. अच्छा, economic status. That let us say if you belong to a lower class or you're working in the agriculture sector, you will consider children to be working hands. So you might have more fertility rate. But let us say you belong to an educated middle class where you believe that you have to invest in the development of a child. Child is no longer a source of income. In fact, you have to invest in the growth of the child. So you will go for less number of children. So that can be one of the factor. Or state interventions in the form of policies. और बताओ points. Job opportunities or very specific job opportunities से I should say female labor force participation. कि अगर female is working in the labor market, the chances of decline in fertility is very high because here the opportunity cost would be high. और बताओ क्या? Family structure, joint family or the nuclear family. So one of the impact could also be the family structure. और हमने लिख दिया health profile हो गया ना. हाँ हाँ ठीक है. पेट्रियार्की, सन, मेटा प्रेफरेंस. और बताओ. एग्जैक्टली. कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स. कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स. और बताओ. अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन की बजाय एक ब्रॉडर टर्म यूज करते हैं, मॉडर्नाइजेशन. अब इसमें अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम सब कुछ आ जाएगा. और फिर इसी के साथ आ जाता है एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स. एक तो है स्टेट ने इंटरवीन करा, एक है यू हैव बेटर एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यू हैव अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है. हाँ. वो तो स्टेट इंटरवेंशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, पॉलिसी है, वो तो सब इसी में आ जाएगा. अब जैसे जननी सुरक्षा योजना है, that is institutional deliveries. उसकी वजह से mortality rate has declined. As a result, fertility rate has also declined. पहले people used to go for more number of children because they believe only few will survive. तो ये भी एक रीजन होता था. तो जब आपका मोर्टैलिटी डिक्लाइन करता है तो आपका फर्टिलिटी भी डिक्लाइन करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. सो ऑल द इंटरवेंशंस व्हिच हैव बीन मेड बाय द स्टेट. यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है. लिखो. अब ये तो हो गया जीएस का आंसर. अब लिखते हैं सोशियोलॉजी. लिखो. हाँ. जॉब स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेक्टोरल डिवीजन भी हो सकता है. रूरल एरिया इज एग्रीकल्चर सेक्टर. Chances of more or higher fertility rate. Also, they don't have access to health infrastructure. Also, patriarchy is very prominent. Also, women are not very educated and empowered vis-a-vis urban area. So that is the difference. ठीक है.
फर्स्ट राइट डाउन. हाँ जी. ठीक है. और अगर पढ़ते पढ़ते भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पढ़ते पढ़ते और याद आएगा तो और डाल देंगे. ठीक है, लिखो. पहला डिटर्मिनेंट, एज एट मैरिज. एज एट मैरिज. According to Davis and Blake, according to Davis and Blake, it is primary determinant of fertility. Davis and Blake, B-L-A-K-E. According to Davis, Kingsley Davis and Judith Blake. अब पूरा पूरा कौन नाम लिखे? According to Davis and Blake, B-L-A-K-E. अच्छा नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपको याद करना, मतलब पता होना चाहिए. तो किंग्सली डेविस एंड जूडिथ ब्लेक. ठीक है, लेकिन उतना समय नहीं है लिखने का हमारे पास, तो डेविस एंड ब्लेक. ठीक. एज एट मैरिज बताया था ना मैंने. सो अकॉर्डिंग टू डेविस एंड ब्लेक, इट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी. इट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी. एक्चुअली डेविस एंड ब्लेक ने ना फर्टिलिटी और सोशल स्ट्रक्चर पे एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव दिया था. उन्होंने कहा था 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको. पहला, एक्सपोजर टू सेक्सुअल रिलेशंस. ठीक है, दैट इज द फैक्टर रिलेटेड टू इंटरकोर्स. दूसरा उन्होंने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेप्शन. ठीक है, और तीसरा उन्होंने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग जेस्टेशन एंड बर्थ. ठीक है, और इन्होंने कहा था यही 3 फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को मेजरली मतलब इंपैक्ट करते. अभी लिखवा दूंगी, बट ये पॉइंट क्लियर हुआ पहले. ठीक, नेक्स्ट लिखो. कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस according to NFH's data, according to NFH's data shows it to be the key driver, shows it to be the key driver of fertility decline. Key driver of fertility decline. ठीक है. थर्ड, education is the best contraceptive. Education is the best contraceptive for example, Kerala's high female literacy, Kerala's high female literacy correlates with low fertility. Low fertility as Bihar's low female literacy, as Bihar's low female literacy correlates with high fertility. Correlates with high fertility. Clear है? Next. Women's status in family. ये जो पेट्रियार्की वाला पॉइंट था ना, women's status in family. Women's status in family. According to Amartya Sen, according to Amartya Sen, reproductive choices are meaningful. Reproductive choices are meaningful
only when reproductive choices are meaningful, only when women possess agency. Agency का मतलब autonomy. Only when women possess एजेंसी. इनफैक्ट अमर्त्य सेन ने एक बार कहा था कि अगर विमेन को आप एजेंट ऑफ चेंज बनाते हो तो आईएमआर, सीएमआर, एमएमआर, मैल नरिशमेंट सब रिड्यूस हो जाएगा. Because women can exercise her choice only when she has the agency, she has the autonomy with respect to decision making. Is that clear? एक इसी पे एक बात बताती हूँ क्योंकि चर्चा चल रही है. MS स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92-93 की बात है. एंड दैट टाइम, उससे पहले हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वगैरह आया था 78 में, वो मैं अगली क्लास में करवा भी दूंगी. तो उसमें यही था कि वी वर प्रमोटिंग स्टरलाइजेशन एंड एवरीथिंग. तो एक चीज को समझो, थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ. इमरजेंसी के टाइम पे इज एवरीबडी अवेयर देयर वाज फोर्स स्टरलाइजेशन. ठीक है, तो व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट? बिकॉज आफ्टर दैट कांग्रेस लॉस्ट द पावर. ठीक है, एट द सेंटर. व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस फोर्स स्टरलाइजेशन? What was wrong here? Sterilization was wrong or forced was wrong? Forced was wrong. But the next government which came in power thought sterilization was wrong. Because जो emergency में sterilization हो रहा था, that was basically vasectomy. Vasectomy का मतलब होता है male sterilization. So problem was not with male sterilization, problem was forced male sterilization. तो जब ये अगली सरकार आई थी, आफ्टर कांग्रेस लॉस्ट द पावर आफ्टर इमरजेंसी, द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज फैमिली प्लानिंग का नाम बदल के फैमिली वेलफेयर कर दिया, स्टरलाइजेशन को वॉलंटरी कर दिया और सारा फोकस शिफ्ट हो गया विमेन स्टरलाइजेशन पर. अब आप कहोगे इन दोनों में दिक्कत क्या? पहली बात तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है. दूसरी बात, विमेन इज नॉट द एजेंसी of change or a decision maker. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फीमेल स्टरलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. There is very high probability of infections and succumbing to those infection. If I'm not wrong, छत्तीसगढ़ का एक केस भी आया था कि मास स्टरलाइजेशन कैंप लगाया था और जो टूल्स यूज करे गए थे वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं थे. इसकी वजह से विमेन को इन्फेक्शन हो गया था एंड दे ऑल डाइड. But male sterilization is not detrimental or threatening to life. But अब क्या है, mindset बदल गया कि giving birth is associated with machoism. It is associated with manhood. So in a patriarchal society, you do not go for male sterilization, you are going for female sterilization. Out of 197.5 are the cases of tubectomy. That is female sterilization. क्लियर हुआ? तो इसके बाद जब वो फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वगैरह आई तो MS स्वामीनाथन ने ऑब्जर्व करा कि पहली बात तो पॉपुलेशन ग्रोथ में बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली इन्वॉल्व्ड. व्हाई द इंटायर ओनस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज ऑन वुमेन. नाउ यू गेट दैट पॉइंट ऑफ गीता सेन कि पॉपुलेशन पॉलिसी बनाते वक्त फोकस शुड बी ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड हेल्थ ऑफ वुमेन रादर देन जस्ट ट्रीटिंग देम एज अ टूल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. तो यही बात MS स्वामीनाथन ने बोली थी कि यू कैन नॉट पुट द इंटायर ओनस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ऑन विमेन, स्पेशली गिवन इंडियन सोसाइटी विच इज पेट्रियार्कल इन नेचर. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? क्लियर हुआ? तुम क्या लिख रहे थे लास्ट चीज? हाँ, एजेंसी ना. अब इसी में आके लिख दो. अकॉर्डिंग टू MS स्वामीनाथन, अकॉर्डिंग टू MS स्वामीनाथन, entire onus of population control, entire onus of population control should not be on the women, and one should also promote vasectomy. One should also promote vasectomy. Vasectomy. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल एम्प्लॉयमेंट. आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कर सकते हो. इसको हमने कहां यूज किया था? पिछली क्लास में गैरी बेकर.
ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, गैरी बेकर की ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात की थी ना, ठीक, तो इसी में लिखो, अकॉर्डिंग टू गैरी बेकर, children represent cost benefit decision. Children represents cost benefit decision. Children represents cost benefit decision. Hence, with increase FLFP, with increase FLFP, female labor force participation, comma, opportunity cost of childbearing, opportunity cost of childbearing and rearing increases. Childbearing and rearing increases, hence decline in fertility. Hence decline in fertility. Hence decline in fertility. Clear है? Next. Poverty and economic status. Poverty and economic status. Poverty and economic status. According to Oxfam report, there exists a wide perception in Indian society. There exists a wide perception in Indian society among lower class, और फिर inverted commas में लिखना, more children means more number of working hands. More children means more number of working hands. Clear है? Next. Religion. Religion. There are certain religion in which contraception, family planning, abortion, that is medical termination, is not allowed. So just write down. Religion influences contraceptive norms. Religion influences contraceptive norms. However, the major factor is socio-economic status. However, the major factor is socio-economic status. इस पॉइंट को समझ रहे हो? आप कभी इस मतलब आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू विल एग्री, बट डिड यू ऑब्जर्व दैट वो जो कार्ल मार्क्स कहते हैं ना कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, so the belief and practice of religious customs to the T is observed more among the lower class. If you are rich, empowered, educated, you may modify the religious beliefs as per the rationale or the status of the society. For example, कितनी बड़ी irony है, rich people can still afford more number of children, but they will go for less number of children. Is this clear for everyone? ठीक है, जैसे कि फिर वही वाली बात है, थोड़ा सा इससे हट के, लेकिन हम आ गई है मन में तो बोलूंगी। जैसे रिच लोगों को आप ये बोलते हुए कभी नहीं सुनोगे कि अगर 5,000 का सिलेंडर हो गया तो भी हम खरीदेंगे, जनरली सेइंग, ठीक है, because there is a certain section which wants to protect a certain ideology, because Marx says religion is opium of masses. Is this clear? ठीक है, चलो। किस चीज में? एजुकेशन लिखा है कहीं? और नहीं तो क्या, एजुकेशन तभी तो कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव से ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, वो अपने आप में बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट, सोशो कल्चरल नॉर्म्स। सोशो कल्चरल नॉर्म्स,
सोशो कल्चरल नॉर्म्स, इसमें बस एक लिखो, सन मेटा प्रेफरेंस, सोशो कल्चरल नॉर्म्स, सन मेटा प्रेफरेंस। अच्छा, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा इलैबोरेट कर देना, ठीक है, बस उतना है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें लिखो लुई वर्थ का कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म। अकॉर्डिंग टू लुई वर्थ, according to Louis Wirth, urban areas are characterized by urbanism. Urban areas are characterized by urbanism which transforms the society from being collective to individualistic, from being collective to individualistic, comma, from production unit to consumption unit, production unit to consumption unit, comma, disintegration of joint family, disintegration of joint family, comma, increased aspirations, rising cost of living, need for skilled labor, नीड फॉर स्किल्ड लेबर, अब चाइल्ड लेबर कैसे होगा, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए ना, नीड फॉर स्किल्ड लेबर एक्सेट्रा, reduces the fertility, reduces the fertility, reduces the fertility. Have we written enough points? है, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन, critically examine the factors, critically examine the factors responsible for decline in fertility, responsible for decline in fertility, responsible for decline in fertility। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन फर्टिलिटी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। या ये भी तो हो सकता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, मुझे कॉमन पॉइंट्स नहीं चाहिए, गिव मी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ठीक है, वन ऑफ द एस्पेक्ट कुड बी दैट, गिव मी मोर सोशल। अरे आप तो ऐसे सोचो, आपको ऐसा लगता है मैं आपसे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तब पूछूंगी जब आपको पढ़ाया नहीं है। मैं पूछ इसलिए रही हूं, अभी पढ़ा के गई हूं इससे पहले वाली क्लास में, वो इतना जो वो चित्रकारी करी थी मैंने, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें फ्रैंक नोटस्टीन पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि इंडिया कहाँ है, स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब क्या है, बर्थ रेट में डिक्लाइन। फिर उसके रीजंस लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, वो आंसर देना था बस। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, पहला पॉइंट लिखो। अब वो थ्योरी पूरी दोबारा नहीं लिखवा रही, बस एक लाइन में मेंशन कर रही हूं।
पहला पॉइंट लिखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, demographic transition theory according to which India currently is in stage 3. India currently is in stage 3. और जब भी स्टेज 3 लिखो तो ब्रैकेट में लिखो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, full stop. According to Frank Notstein, अरे एक सेकेंड, ये कुछ बफर हो रहा है क्या? तुमको क्या लग रहा है तुम्हारा ही बफर हो रहा है? ये भी रुका हुआ था, हमको अभी मैसेज दिखे। एक बच्चा कह रहा है मैम प्लीज ऑनलाइन लोगों को जवाब दीजिए। जवाब देंगे तो तब ना जब मैसेज दिखेगा, अभी दिखा है बेटा। अरे तेरी, ये तो बहुत पीछे चला गया। हमको लास्ट यही दिखा था टेक्नोलॉजी वाला, उसके बाद के अभी दिखे हैं। रुको एक सेकेंड, कैन यू प्लीज रिपीट फ्रॉम प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी? ये कहां लिखे थे हम? कितने पेजेस हैं उसके बाद? अविनाश, प्लीज हेल्प मी विद दिस। कैन यू राइट ऑन द रिस्पॉन्स पोर्टल जो क्लास में किया है, प्लीज लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 2 पेजेस है, मैं कितना रिपीट करूंगी ना, फिर ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे। एंड सीरियसली मैंने इग्नोर नहीं किया था, दिखा नहीं था, अभी जब रिफ्रेश किया है तो ये कमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो प्लीज अविनाश लिख दो ना यहाँ पर। आई अंडरस्टूड कि स्टक हो गया था वीडियो, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन प्लीज यहाँ पे लिख दो ना ऑनलाइन पोर्टल पे जो हमने लिखा है, जिससे कि ये लोग लिख लेंगे, ठीक है। और अभी एक काम करो, यहां से क्लास फॉलो करो, 2 पेजेस छोड़ दो, अगर वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक रह गया है, 2 साइड्स, पेजेस एज इन 2 साइड्स छोड़ दो, एंड देन वील कंटिन्यू अभी से। अगर फिर स्टक होता है तो मेरे को बताना, मैं बार बार रिफ्रेश करती रहूंगी, ठीक है। कहां थे यार, लास्ट बता। हाँ, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक नोटस्टीन, अर्बनाइजेशन, industrialization, and rising living standards transforms family structure and fertility behavior। यार एक बार वो पॉइंट देना ना, कहां लिखवाया मैंने? जो भी था वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट वाला और फर्टिलिटी। हाँ दो, ये थोड़ी ना होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस से पहले जो एज एट मैरिज, वही वाला पॉइंट बोल रहे हो ना? एज एट मैरिज अकॉर्डिंग टू डेविस एंड ब्लेक इट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। और उसके बाद लिखा है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस according to NFHS data it shows that contraceptive prevalence is the key driver of decline in fertility rate। यही वाला पॉइंट बोल रहे हो ना जो भी पूछ रहा है? 2 पॉइंट्स है, एज एट मैरिज है और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है। एज एट मैरिज पे डेविस एंड ब्लेक का पर्सपेक्टिव लिखा है, किंग्सली डेविस एंड जूडिथ ब्लेक, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस का पॉइंट लिखा है जिसमें एनएफएचएस डेटा को मेंशन किया है, दैट अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस डेटा कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी इज अ की ड्राइवर ऑफ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट। अगर तो यही पॉइंट है तो लिख लो, और नहीं है तो फिर सिनॉप्सिस का वेट करते हैं, क्योंकि नहीं तो मैं ढूंढती रह जाऊंगी कि कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट पॉइंट डालो, कॉल्डवेल वेल्थ फ्लो थ्योरी, अच्छी थ्योरी है, छोटी सी है। कॉल्डवेल वेल्थ फ्लो थ्योरी, वेल्थ फ्लो थ्योरी। जो अभी मैं बात नहीं कर रही थी कि वेल्थ का जो फ्लो है वो रिवर्स हो गया है। पहले बच्चे होते थे सोर्स ऑफ इनकम फॉर पेरेंट्स, एंड नाउ दे हैव बिकम द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द parents. So now parents do not believe that more number of children means more number of working hands. They believe more number of children is more number of expenditure. ठीक है, तो लिखो। आजकल के बच्चे कितने अजीब हो गए। कल कोई चीज़ हुई, मैंने अपने बेटे को बोला बेटा ये मत खराब कर, तो पहले तो मैंने नॉर्मली समझाया, तो फिर मैंने कहा ये बेटा बहुत महंगा है मत खराब कर, ऐसे बोला। तो चीज़ यार महंगे सस्ते की नहीं होती बात ऐसी। तो उसने मुझसे छूटती पूछा कितने का है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि बेटा 3,000 रुपये का। कहता है मॉम मतलब ये स्ट्रेसिंग ओवर 3,000 रुपीज। मैंने कहा इसमें मेरी मम्मी ने क्या किया होता, धर तो दिया ही होता। मतलब मुझे तो अच्छे से याद था। सो वही मैं कह रही हूँ कि चिल्ड्रन आर नाउ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो राइट डाउन कॉल्डवेल्स वेल्थ फ्लो थ्योरी, इसमें लिखो। He argued that fertility declines. He argued that fertility declines when wealth flow gets reversed. When wealth flow gets reversed. That is from children supporting parents to parents investing in children, to parents investing in children, to parents investing in children. Now just hold. ये तो कॉल्डवेल की वेल्थ फ्लो थ्योरी है, बट इफ आई हैव टू अप्लाई दिस इन इंडिया, कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया? क्योंकि रूरल इंडिया में वेल्थ फ्लो रिवर्स नहीं हुआ है, बट इन अर्बन इंडिया द वेल्थ फ्लो हैज बीन रिवर्स्ड. सो इन अर्बन एरिया फर्टिलिटी हैज डिक्लाइंड एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू रूरल इंडिया. क्लियर हो रहा है? तो बस एक लाइन ऐड करो. With respect to India, in rural areas, children still support parents economically. Children still support parents economically. Whereas in urban India, children represent high investment in education and lifestyle. High investment in education and lifestyle. तो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, दूसरा कॉल्डवेल का वेल्थ फ्लो थ्योरी. एक और बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है, लिखो. अकॉर्डिंग टू, आप एक ना पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे किताब आती है, हम लोग तो खैर पूरी किताब पढ़ते थे, तो भिंडे एंड कानितकर की किताब है. सो इट इज आशा भिंडे एंड तारा कानित. लिखो. अकॉर्डिंग टू आशा भिंडे and according to Asha Bhinde and Tara Kanitkar,
In principle of population studies, in principles of population studies, इसको underline करना. In principles of population studies, identified causal factors leading to declining fertility rates in developed countries. Declining fertility rates in developed countries. Points लिखो. Improved fertility control methods. Second, liberal abortion laws. पहले तो fertility control methods have improved. दूसरा, liberal abortion laws. Third, small family norms. Changing value system. Greater women's workforce participation. Greater women's workforce participation. And rising cost of child rearing. अगर बाई चांस जीएस में भी सवाल आ जाए कि फर्टिलिटी क्यों डिक्लाइन कर रहा है, तो भिंडे कानितकर बस नाम मत लिखना, उसके अलावा पॉइंट्स तो यही लिख सकते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी लिख भी सकते हो, बस केवल क्या नहीं लिखना होगा, फ्रैंक नोटस्टीन, बस वो नहीं लिखना होगा. वेल्थ फ्लो थ्योरी भी डिस्कस कर सकते हो, क्या नहीं लिखना होगा, जॉन कॉल्डवेल. तो नाम मत लिखना, बाकी सारा पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं. ठीक है, एक लास्ट पर्सपेक्टिव डालेंगे, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उसमें लिखो. अमर्त्य सेन और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, मिसिंग विमेन थीसिस. अमर्त्य सेन्स मिसिंग women thesis highlights how fertility pattern are deeply gendered. Full stop. According to NFHS data, women's education is directly correlated with fertility decline. Is directly correlated with fertility decline. एक पॉइंट और ऐड कर दो. Declining fertility reflects increase women
comma, autonomy in decision making, and agency vis-a-vis reproductive choices. Agency vis-a-vis reproductive choices. Agency vis-a-vis reproductive choices. क्लियर है? एक पर्सपेक्टिव है जिसको हल्का सा एलैबोरेट करेंगे, दैट इज किंग्सली डेविस एंड जूडिथ ब्लेक. गिव द हेडिंग. Kingsley Davis and Judith Blake, Judith, Judith Blake, framework on social structure and fertility. Framework on social structure and fertility. Framework on social structure and fertility. हमने 3 stages की बात करी थी. First was intercourse, second was conception, and third was gestation and birth. Give the first argument. According to them, social factors affect fertility through 3 major stages of reproductive process. Through 3 major stages of reproductive process. Factors affecting intercourse, आप इसमें चाहो तो एक्सपोजर टू सेक्सुअल रिलेशन भी लिख सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे. Factors affecting conception, and factors affecting gestation and birth. इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस केवल फैक्टर्स लिख के छोड़ेंगे, जैसे कि एज एट मैरिज, duration of marriage, frequency of sexual relations, celibacy. अब इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है. तो सोशल फैक्टर्स फर्टिलिटी कैसे इंपैक्ट करते हैं? थ्रू दीज 3 स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. Factors affecting exposure to sexual relations, factor affecting conception, factors affecting gestation and birth.
बाय चांस अगर जीएस में भी क्वेश्चन आए या आपसे सोशियोलॉजी में भी क्वेश्चन आए लेकिन डेविस एंड ब्लेक क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, आप खुद से डाल सकते हो. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेप्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्सेप्शन, उसमें डालो पहला, availability of modern contraceptive methods. Availability of modern contraceptive methods. Second, infertility. हो सकता है ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो इन कंसीविंग द चाइल्ड, सो दैट इज इनफर्टिलिटी. और तीसरा, कल्चरल प्रैक्टिसेस which may affect conception. Cultural practices which may affect conception. Factors affecting gestation and birth. Factors affecting gestation and birth. Induced abortion या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी लिख सकते थे. इंड्यूस्ड अबॉर्शन और मिसकैरेजेस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस. मिसकैरेजेस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन. मिसकैरेजेस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन. सो डेविस एंड ब्लेक का पर्सपेक्टिव समझ आया? बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिखते. जस्ट राइट वन कंक्लूडिंग रिमार्क. According to Davis and Blake, social institutions like marriage, family, cultural norms regulate fertility, full stop. Regulate fertility, full stop. इसी में लिखेंगे सेकंड. Economic structure such as agrarian or industrial influences fertility. And last लिखो, modernization reduces fertility. अब ये तीनों जो कंक्लूडिंग रिमार्क दिए हैं ये समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन लिखो. क्या ही क्वेश्चन लिखेंगे? एक बहुत मेरे टाइम का क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये पढ़ाया भी इसीलिए था. इस एक लिखने की जरूरत नहीं है. ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर एज व्यूड बाय डेविस एंड ब्लेक. ये मेरे टाइम पर आया था 30 नंबर का. आपको तो अब 30 नंबर का आना नहीं है, तो आप ये मान लो 20 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. तो ये तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन लिखो.
Discuss some social and cultural determinants of high fertility rate full stop. Enumerate the reasons for the decline. Enumerate the reasons for the decline. Enumerate the reasons for the decline. Next लिखो. Critically discuss the implication of decline in fertility rate. Discuss the implication of decline in fertility rate. Last question, I'm giving you 5 minutes, give me the points. सोच के दो, हमने नहीं डिस्कस किया है. हम मान रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर गया है, मुझे इंप्लीकेशंस बता दो कि इसके क्या इंपैक्ट होगा. सोच के बताना, भड़बड़ाओ नहीं और एक एक पॉइंट देने की कोशिश नहीं करना. सोचो, क्योंकि एग्जाम में तो कम से कम 5-6 पॉइंट्स चाहिए ना, तो देखो 5-6 पॉइंट्स हैं क्या आपके पास. किस चीज में? अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन कर जाएगा, ये तब होगा जब फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रहा है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन एज कर रही है. इनिशियल स्टेज में नहीं होगा. ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट डीपॉपुलेशन. डीपॉपुलेशन का मतलब फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग बट द पॉपुलेशन इज गेटिंग एजेड. सो दीज आर टू साइमल्टेनियस थिंग, सो इट विल रिजल्ट इन टू डीपॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस हो जाएगा अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन करेगा. हाँ, हो सकता है. इम्बैलेंस का मतलब है कि डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाएंगे अगर फर्टिलिटी कहीं पे डिक्लाइन. जैसे साउथ इंडिया में फर्टिलिटी ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका है, तो हम कह सकते हैं कि नाउ देयर इज डर्थ ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, एंड दैट इज व्हाई द माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट इज हैपनिंग टू साउथ इंडियन स्टेट्स. बिल्कुल, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडरगोज अ चेंज. वेरी वेल सेड. एजिंग वाला पॉइंट ऐड करो. अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट इनटू ओल्ड एज ग्रुप, और जितना ओल्ड एज ग्रुप में जाएगा उतना प्रेशर ऑन द रिसोर्स ऑफ द नेशन विल बी इंक्रीज, प्रोवाइडेड योर ओल्ड एज इज नॉट एन एसेट. अगर तो वो एसेट पे ट्रांसफॉर्म हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज इट विल जनरेट अ लाइबिलिटी. और सोचो, अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन करता है और डीलिमिटेशन करना है, क्यों सदर्न स्टेट्स को दिक्कत हो रही है? क्योंकि उनका फर्टिलिटी बहुत पहले डिक्लाइन कर चुका है. अगर अब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विल डिक्लाइन. कितना बढ़िया पॉइंट दिए हो तुम. सो वेरी वेल सेड. और बताओ, सोचो. सब उसी की तरफ देख रहे हैं, अब हर पॉइंट वो थोड़ी ना देगा, कुछ तो तुम भी तो. हाँ बिल्कुल, माइग्रेशन होगा और माइग्रेशन स्क्यूड हो जाएगा. मतलब जहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, और जहां पे यंग पॉपुलेशन थी वो सोर्स बन जाएगा. तो वन साइडेड स्क्यूड माइग्रेशन होगा, जिसकी वजह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट का होना, सन ऑफ सॉइल का होना, सोशल क्राइसिस का, अनरेस्ट का आना बहुत ज्यादा हो जाएगा. वेरी वेल सेड. बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है. पॉपुलेशन मतलब प्रेशर वुड इंक्रीज ओवरऑल. और बताओ कैसे? एक सेकंड, क्या? हाँ
हाँ, वो एजेड पॉपुलेशन वाले पॉइंट पे आ जाएगा कि वो बर्डन की तरह कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि केयर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और दूसरा पेंशन वगैरह हो गया या वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए तो वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, केयर इकोनॉमी में दो चीजें आती हैं, एक चाइल्ड केयर आता है और एक ओल्ड एज केयर आता है, तो इस तरफ से द जॉब अपॉर्चुनिटीज विल डिक्लाइन, हो सकता है बिल्कुल, एज स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, एज स्ट्रक्चर विल अंडरगो अ चेंज। ठीक है, हम इंप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। सो वन ऑफ द इंप्लीकेशन वुड बी द चेंज इन द एज स्ट्रक्चर। जैसे पहले आपका पिरामिड ऐसा लगता था, स्ट्रॉन्ग बेस एंड नैरो ओल्ड एज, अब ओल्ड एज धीरे धीरे वाइड होता जाएगा और ये वाला जो बेस है वो डिक्लाइन होता जाएगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं। कल्चरल इंपैक्ट कैसे? हाँ, ये कह सकते हैं। अब लेबर कॉस्ट, क्योंकि एक बार जब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करेगा तो पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डर्थ ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, तो लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज, जो कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है। अब ऐसे में क्या, अगर आप टेक्नोलॉजिकली मूव कर जाते हो, मतलब यू रिजॉर्ट टू टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन, तब तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज द प्रॉब्लम वुड बी देयर। इज दैट क्लियर? डू वी हैव इनफ पॉइंट्स टू राइट? विल यू बी एबल? लिखो। कौन सा वन ग्रुप? वो ऐसा थोड़ी ना किसी एक डोमिनेंट ग्रुप में फर्टिलिटी कम हो रही है। अरे हम गलत, पहले हम ना, यू आर ब्रिंगिंग टू मेनी पॉइंट्स इन वन, तो फिर तुम क्लैरिटी ऑफ थॉट इज नॉट कमिंग। मैं तुमको एक आइडिया दूं, इसको नहीं, इसके थ्रू मैं बाकियों को आइडिया दे रही हूं। जब बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आता है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग लिख के किया करो। पेपर पेन है ना, ठीक है, अभी उतना एनवायरनमेंट का नहीं सोचेंगे कि पेपर वेस्ट हो रहा है, लेकिन पेपर लिख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, तो आपको कितनी बार मैं वो फ्लो चार्ट नहीं बना के दिखाती हूँ, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो। कई बार आपको रियलाइज नहीं होता ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हुआ है, जो मैं आपको कंटेंट बना के देती हूँ, कि इसके बाद ये पॉइंट आया, इसके बाद ये पॉइंट आया, इसके बाद ये पॉइंट आया, आपकी कनेक्टिविटी खुद बन जाएगी। तो अगली बार जब मैं होम असाइनमेंट दे रही हूं या मैं क्लास असाइनमेंट दे रही हूं, प्लीज लिख लिख के ब्रेनस्टॉर्म किया करो। ठीक है, लिखो कुछ पॉइंट्स। हाँ, वो हमने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट हो जाता है, तो रीजनल इंबैलेंसेस आ जाएंगे, वन साइडेड माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन। implications implications यार एक साथ एक जैसी डिक्लाइन तो होती नहीं है, साउथ में पहले कर गई, नॉर्थ में बाद में कर रही है। अब जैसे ओवरऑल टीएफआर गिर गया, लेकिन ऐसी बात है यूपी बिहार पीछे थोड़ी ना हटा है अभी, तो यूपी बिहार झारखंड, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट भी इन्वॉल्व है, मेघालय, वहां पे आज भी फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है, बिहार वगैरह में तो 3 से ऊपर है अभी भी। ठीक है ना, फिर हमारे नेताजी भी बोले ही हैं, go for more number of kids. So write down. First point. With decline in fertility, it leads to better intergenerational impact. Better intergenerational impact. For example, improved nutrition, healthcare, education, लिविंग कंडीशंस एक्सेट्रा। आप चाहो तो बुर्दुए का कल्चरल कैपिटल डाल देना। ठीक है, इंटरजेनरेशनल पॉजिटिव इंपैक्ट है ना। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन चॉइसेस फॉर विमेन
expansion in choices for women along with increased FLFP, along with increased FLFP, ब्रैकेट में अमर्त्य सेन। हम अब सब डिस्कस कर चुके हैं, बस अगर कहीं कुछ याद आएगा तो एक एक बस थिंकर का नाम लिखवा दूंगी। अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, increase status within the society and addressing gender inequality, and addressing gender inequality. Next, aging population would reduce both saving and investment which implies either higher taxes, भाई अब सरकार पैसा कहां से लाएगी इन पे खर्च करने के लिए? या तो वो टैक्स ज्यादा इंपोज करेगी या वो इन पे खर्च नहीं करेगी। सो विच इंप्लाइज आइदर हायर टैक्सेस और लोअर स्पेंडिंग ऑन ओल्ड एज पॉपुलेशन, और lower spending on old age population. Lower spending on old age population. क्या हम ये कह सकते हैं ये जो एजिंग पॉपुलेशन है ये क्रिएट करेगी डिमांड फॉर केयर इकोनॉमी, जिसको हम बेसिकली कहते हैं पर्पल इकोनॉमी। सो राइट डाउन, केयर इकोनॉमी को पर्पल इकोनॉमी कहते हैं। वो केयर किसी का भी हो सकता है, चाहे वो चाइल्ड का हो चाहे वो ओल्ड एज का हो, लेकिन जो स्पेसिफिकली ओल्ड एज के लिए होता है उसको सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन, इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, increased burden of aging population will create more demand for care economy, will create more demand for care economy. Next, the crystallized intelligence of old people vis-a-vis fluid intelligence of youth. Crystallized intelligence matlab age old intelligence, intelligence which comes from experience. Crystallized intelligence of old people vis-a-vis fluid intelligence of youth. जैसे अगर फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है तो इनोवेशन ज्यादा आता है, रिस्क टेकिंग ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन जो ओल्ड लोगों का क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है ना, वो स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। दे आर बेटर एट हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, crystallized intelligence of older people vis-a-vis fluid intelligence of the youth. Next, it may generate entrepreneurship vacuum. It may generate entrepreneurship vacuum. क्योंकि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, यंग एज डिक्लाइन करेगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी नहीं, तो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में वैक्यूम आ जाए। ठीक, नेक्स्ट, डिक्रीजिंग फैमिली साइज
decreasing family size can disrupt traditional support system. Can disrupt traditional support system. ये बात तो है यार, हम सबके सारे रिश्तेदार हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा के अगर हम बोले तो मौसी, चाचा, मामा, बुआ सब है। फिर अब उन लोगों के एक एक दो दो बच्चे, जैसे आप और आपके सिबलिंग्स ज्यादा से ज्यादा हुए तो 3 सही, ठीक है। तो इन दैट केस मे बी यू हैव दैट रिलेशन। नहीं तो अगर सपोज करो किसी की 2 डॉटर्स हैं तो फिर मामा का रिश्ता नहीं है, या अगर 2 सन हैं तो वो रिश्ता नहीं है। तो ऐसे भी, और अब जो हमारी जनरेशन या हमारे बाद आएगी, दे आर गोइंग फॉर मैक्सिमम 1 किड और नो किड। सो द ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम इज गेटिंग वीकेंड। कोई है ही नहीं रिश्तेदारी में। दैट इज वाई फ्रेंडशिप इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन किनशिप। शादी में डांस कौन करेगा? हमारे यहां तो कजन और उनके बच्चे ही करते थे, अब ना तो कजन है ना बच्चे हैं, तो अब दोस्तों की जरूरत है, ठीक है। तो क्या लिखा है लास्ट वर्ड? Traditional support system, which in turn can lead to psychological issues. Which in turn can lead to psychological issues. Increased incidences of depression, anxiety, suicide, that is all happening because traditional support system has weakened. एक last point लिखो. Skewed migration patterns are created. Skewed migration patterns are created which may lead to socio-cultural conflicts. Which may lead to socio-cultural conflicts. For example, us versus them. Ghettoization. मैंने कहा ना, जहां थिंकर ना मिले वहां टर्म यूज कर दो, तो यहां पे आ जाएगा ghettoization. या सन ऑफ सॉइल, माइरॉन वीनर डाल दो, माइग्रेंट वर्सेस नेटिव. हाँ, अनोमी डालनी है डरकाइम की. वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग डरकाइम का पर्सपेक्टिव डालने के लिए, तो अनोमी डाल दो. हाँ बिल्कुल डाल दो, एब्सोल्युटली. नॉर्मलेसनेस क्रिएट हो गई है क्योंकि चेंज आ गया है सोसाइटी में. कोई रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फैमिली नहीं है, तो फैमिली के नॉर्म्स नहीं है, ठीक है. चलो, सो ऑन दिस नोट वील कंक्लूड द लेक्चर टुडे, ठीक है. वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने कहा था सोच के आना, सेम सेक्स मैरिज ऑन पॉपुलेशन डायनेमिक्स. हाँ, ये सोच के आना. कब है क्लास अगली? परसों ना? हाँ परसों, हाँ ठीक है, डे आफ्टर टुमारो. सो उसमें मुझे इसका आंसर चाहिए. पहले आप दोगे फिर मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है. और ऐसे एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, सब पॉइंट्स लेकर आएंगे. भले ही आप 1-2 पॉइंट लेके आओ लेकिन लेकर आना. चलो, हाँ. अभी माइग्रेशन किया नहीं है ना, वहां तक उसमें